Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Screen is visible, everyone? Yes, ma'am. अंकित, ये आपकी क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन करती है? 9 बज जाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। So on the yesterday's turn, we have discussed some of the algorithms. So we have completed up till 3 algorithms: a priori, partition algorithm, and pincer search. So today we will discuss one more algorithm, and that is your incremental algorithm. Okay, so up till now, all the previous algorithm is based upon the static data. Static data means there is no change in the data set. Okay, but sometimes it's not possible because as you go on changing the data sets, new transaction will arrive and it will change your complete data set. ठीक है, और फिर आपने ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन आता रहता है और मे बी वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार यूजफुल नहीं होते हैं, पर इनिशियली अगर हमारी कोई परचेसिंग हिस्ट्री है और जो बहुत रीसेंट है, अगर उसके बेसिस पे हमें रिकमेंडेशन आते हैं तो वो हमारे काफी यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो जनरली ऑनलाइन शॉपिंग में हम एसोसिएशन रूल ही यूज करते हैं कि इफ समबडी इज परचेसिंग दिस सो ही विल परचेस दिस आल्सो। ठीक है, कि अगर किसी ने शूज खरीदे तो उसको ऑटोमेटिकली सॉक्स का रिकमेंडेशन आता ही है। ठीक है, और सिमिलर टाइप ऑफ शूज का रिकमेंडेशन आता है। तो ये जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं वो एसोसिएशन रूल से ही डिटरमाइन किए जाते हैं। पर अगर क्या है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो काफी ओल्ड हो चुकी है, मतलब आपकी जो परचेसिंग हिस्ट्री है वो काफी ओल्ड है, तो उसके बेसिस पे अगर आपको रिकमेंडेशन दिए जाएंगे तो वो आपको सुटेबल नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली एज अ टाइम ग्रोस वी हैव टू चेंज द database also. So there is always an increment in the transactional database. ठीक है, on the basis of increment we have changed the data set, and based upon the changing in the database, association rules will also change. To solve these kind of problem, an incremental algorithm is used. So mining of association rule on transactional database is usually an offline process since it is costly to find the association rule in large databases. As I told, it's an offline process and it is costlier one. So because the association rule is generated from the large database, so it's not possible to generate association rule altogether as a new one. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो existing है उसमें ही कुछ changes करेंगे. So with the usual market basket application, new transactions are generated and old transaction may be obsolete as time advances. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे जैसे टाइम पास होगा यूजर की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है और मे बी उसके इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट चेंज होते हैं टाइम के साथ, वैसे ही उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब उसने जो आइटम्स परचेस किए विद इन द बास्केट, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब ईयर 1 में सपोज ही इज परचेसिंग दिस एंड दिस आइटम, देन ईयर 2 में एक परचेस कर रहा है, ईयर 3 में ये परचेस कर रहा है, तो यूजुअली द यूजर इंटरेस्ट विल चेंज, and when the new transaction will arrive, the old transaction will become obsolete at the time grows. So as a result, incremental updating techniques should be developed for maintaining the discovered association rule to avoid redoing mining the whole updated database. So there is always a need of a incremental technique, because in the previous we have some association rules which is based upon the old database, and now the new transactions are arrived. So based upon the new transaction, we have to develop the new rule. Okay, so there is a kind of incremental algorithm which do the trade-off between the old one and the new one. So you need not to discard all the old rules, and altogether you need not to know all the new rules. So to avoid the scan of the complete database, we apply an incremental algorithm. What it do? It simply add the new transaction and develop some new rules
which is compatible with the previous one. Okay, so a database may allow frequent or occasional updates. Such updates may not only invalidate the existing association root but also activate new rules. So there is always a situation where the old rules and the new rules are possible because new transactions are arrived. So based upon the new transaction, there is always a need of a new association. इसको अगर आप लेमैन टर्म में समझे तो कुछ ऐसा है कि जैसे हमने वो 15 रोज का डेटा सेट एक दिखाया था मैंने आपको, उन 15 रोज में अगर और रोज ऐड हो जाती है तो ऑब्वियसली उन 15 रोज के बेसिस पे जो एसोसिएशन रूल्स है वो क्या हो जाएंगे, मे बी वैलिड रहेंगे और मे नॉट भी वैलिड रहेंगे. ठीक है, वैलिड कैसे रह सकते हैं कि अगर आपके सेम है, सो देयर आर 4 केसेस अराइव्स कि आपके रूल्स जो हैं वो कैसे चेंज होंगे. ठीक है, so case 1 is that when one item is frequent in the original database and in the newly inserted transaction. So there is no problem if an item is frequent in the original database and you added some new transaction, but the item set is frequent in both the database, in the previous one and in the new one. So there is no problem. Association is valid in this case. Okay, because there is नो चेंज हैपन. जो आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट पहले थी वही यूजर की रिक्वायरमेंट आपकी अब भी है नए ट्रांजैक्शन के बाद भी. मतलब जो चीजें वो पहले लाइक कर रहा था वही चीजें अब भी लाइक कर रहा है. तो हमारा जो एसोसिएशन होगा वो वैलिड ही रहेगा. जो एसोसिएशन हमने प्रीवियसली बनाया था वही आपके नए वाले में ही वैलिड रहेगा. जैसे कुछ लोग होते हैं, सम पीपल्स लाइक द सेम थिंग ऑल द टाइम कि किसी को ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेड बटर से ही करना है, तो हमेशा वो क्या करेगा, ब्रेड बटर ही परचेस करेगा. मतलब कितने भी डेज पास हो जाए पर उसको ब्रेड बटर ही परचेस करना. सो दिस इज द थिंग कि वो फ्रीक्वेंट था पहले में भी और फ्रीक्वेंट था बाद में भी. ठीक है, केस 2 में क्या है, इफ एन आइटम सेट इज फ्रीक्वेंट इन द ओरिजिनल डेटाबेस बट इट इज इनफ्रीक्वेंट इन द न्यूली इंसर्टेड ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये वो केस है जहां पर वो पहले तो फ्रीक्वेंट था पर अब इनफ्रीक्वेंट हो गया. कैसे, जैसे सपोज मैंने एक ब्रेकफास्ट का केस बताया कि अ पर्सन लाइक्स ब्रेड बटर ऑल द टाइम, बट इफ द पर्सन नाउ become much more health conscious and he is not like the bread butter in that scenario, now he is purchasing some healthy foods. ठीक है, like oats ले रहा है, कॉर्नफ्लेक्स ले रहा है, तो जो कॉलम आपका जिसमें ब्रेड बटर था वहां पे जो इनपुट की एंट्री थी वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आपका ट्रांजैक्शन पहले वो फ्रीक्वेंट था पर अब उसकी एंट्रीज में क्योंकि कोई भी एंट्री नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा. ठीक है, थर्ड केस इज एन आइटम इज नॉट फ्रीक्वेंट इन ओरिजिनल डेटाबेस बट इट इज फ्रीक्वेंट इन द न्यूली इंसर्टेड ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये वो केस है जहां पर क्या है कि उसने कई बार कॉर्नफ्लेक्स खरीदे, कई बार ब्रेड बटर खरीदा, पर जिस भी कॉलम में वो ज्यादा एंट्रीज कर देगा वो क्या होगा, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा. मतलब पर्सन इज नॉट इंक्लाइंड विद सम ऑफ द फूड. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर मतलब वो दोनों टाइप्स के फूड को परचेस कर रहा था पैरेलली, पर अगर उसने कोई एक पर्टिकुलर काइंड का फूड ज्यादा परचेस कर लिया, ठीक है, सपोज उसने ब्रेड बटर की एंट्री मतलब और ज्यादा जो अपकमिंग डेज है उसमें और ज्यादा परचेस किया, तो इनिशियली एंट्रीज जो थी वो लेस थी, बट जो न्यू ट्रांजैक्शन है उसको ऐड होगी वहां पर एंट्रीज ज्यादा हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम फ्रीक्वेंट. ठीक है, the fourth case is an item is not frequent in the original database and in the newly inserted database. मतलब अगर पहले से ही वो कोई पर्टिकुलर फूड नहीं परचेस कर रहा था और आगे भी परचेस नहीं किया तो इट इज इनफ्रीक्वेंट इन प्रीवियस डेटाबेस एज वेल एज इनफ्रीक्वेंट इज न्यू डेटाबेस. सो दिस इज द 4 कॉम्बिनेशन दैट कैन एग्जिस्ट. ठीक है, कि आपके पुराने डेटाबेस और नए डेटाबेस में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं. वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट डेटा सेट्स. ठीक है, तो वो चारों पॉसिबिलिटीज ये थी कि अगर कोई प्रीवियसली फ्रीक्वेंट है और आगे वाले नए ट्रांजैक्शन में भी फ्रीक्वेंट है तब वो केस 1 हो जाएगा. इनिशियली फ्रीक्वेंट था पर नए ट्रांजैक्शन में इनफ्रीक्वेंट हो गया तो केस 2 हो जाएगा. केस 3 में नॉट फ्रीक्वेंट था प्रीवियस में पर फ्रीक्वेंट हो गया न्यू ट्रांजैक्शन में. और केस 4 है कि पहले भी इनफ्रीक्वेंट है और अब भी इनफ्रीक्वेंट है. तो दीज आर द 4 कॉम्बिनेशन. इससे क्या 0 0 या 1 0
0 1 या 1 1 के फॉर्म में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो केस 1 एंड केस 2 है उसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं हमारे एसोसिएशन रूल में, बिकॉज अगर वो फ्रीक्वेंट था तो फ्रीक्वेंट है, अगर इनफ्रीक्वेंट था तो इनफ्रीक्वेंट है। तो केस 1 एंड केस 4 में एसोसिएशंस में देयर इज नो चेंज, बिकॉज जो एसोसिएशन पहले एग्जिस्ट कर रहा था वही एसोसिएशन हमारा अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? केस 2 एंड केस 3 में। ओके, सो केस 2 और केस 3 जो है वो बेसिकली सॉल्व होता है बाय यूजिंग योर इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम। बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो एज आई टोल्ड कि केस 1 और केस 4 में तो कोई चेंजेस आए नहीं, सेम एसोसिएशन एग्जिस्ट, बिकॉज जो ओल्ड डेटाबेस में एसोसिएशन था वही हमारे न्यू डेटाबेस में भी एसोसिएशन है। बट केस 2 में क्या होगा? इट मे रिमूव द एग्जिस्टिंग एसोसिएशन रूल because the item become now infrequent, so those association which exist in the original database is now changed, ठीक है। so it will remove the existing association rule. And case 3 में क्या है? it may add the new association rules because now the item become frequent, so association may exist, so it will now add the new association rule. So to solve case 2 and case 3 we develop the incremental algorithm. So what is the incremental algorithm? There T old is your previous transaction, ठीक है। T is denoted for the transaction, T old is your previous transaction. L old is your all the item sets, the collection of item sets of the previous transaction, okay. So T new is your new transaction. What you need to find? You need to find all the frequent transactions which occurs in T whole. T whole means T new and T old, मतलब previous transaction union with the new transaction. तो आपके जो previous rows थी और अब जो नई rows add हो गई, उन दोनों का अगर हम union ले लें और उसके बाद जो frequent set develop करेंगे वो हमें find out करना है, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि वी जस्ट डू अ पास in which we count the support for a new frequent set, ठीक है। इसमें 3 cases हैं, and what are these cases? An item set of L old. L old का means all the frequent set which exist in the previous data set that are frequent in T new can be determined. This is a case 2, ठीक है। जो हमारे previously item set थे और जो T new में भी frequent हो गए हैं उनको हम determine करें। The item set that belongs to T old but are not in L new are automatically eliminated. मतलब जो L old में आपके frequent थे पर L new में नहीं है तो उन्हें क्या करेंगे? Eliminate कर देंगे। और the items that are neither in L new nor in L old are not be considered. So this is fourth case. जो C part है that is fourth case. जब दोनों में exist नहीं कर रहे तो हम उसको दोनों को remove कर देंगे। इसको यहाँ पे आ जाते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। टू सॉल्व दिस वी यूज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोमोटेड बॉर्डर सेट, ठीक है। तो व्हाट इज अ बॉर्डर सेट? बॉर्डर सेट इज एन, इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंट सेट बट ऑल इज प्रॉपर सबसेट आर द फ्रीक्वेंट सेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर कंसीडरिंग अ हिरार्की सो देयर इज अ मिड पॉइंट और यू कैन से अ बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो वो जो बॉर्डर लाइन होती है वो बॉर्डर मैंने बताया था मैक्सिमल फ्रीक्वेंट सेट होते हैं जो इटसेल्फ भी फ्रीक्वेंट होगा और उसके सब पार्ट्स भी फ्रीक्वेंट होंगे। मतलब उसके नीचे जब जाएंगे तो सारे फ्रीक्वेंट सेट मिलेंगे और उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो सारे इनफ्रीक्वेंट सेट होंगे। सो दैट इज द बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो एक बॉर्डर लाइन जो होती है वो आपकी मैक्सिमल फ्रीक्वेंट सेट की होती है और जस्ट अबव द मैक्सिमल फ्रीक्वेंट सेट वी हैव द लाइन ऑफ द बॉर्डर सेट, ठीक है। जो बॉर्डर सेट होगा वो इनफ्रीक्वेंट होगा पर उसके नीचे वाले जितने भी होंगे वो सारे फ्रीक्वेंट सेट होंगे। तो in this algorithm we find out the promoted border set. And what is a promoted border set? An item set that was a border set before update but it become a frequent set after the update, so it is called a promoted border set, ठीक है। तो border set
इनिशियली क्या होता है, वो खुद तो फ्रीक्वेंट होता नहीं है, पर उसके प्रॉपर मतलब उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब फ्रीक्वेंट होते हैं। पर प्रमोटेड बॉर्डर में हम क्या कह रहे हैं कि जो इनिशियली आपका बॉर्डर सेट था, बट आफ्टर द अपडेट वो जो है क्या कहते हैं, क्या बन गया, फ्रीक्वेंट बन गया, तो हम उसको बोलेंगे प्रमोटेड बॉर्डर सेट। तो यहाँ पर हमने जो ए प्रायरी एल्गोरिथम है उसी का मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इन द ए प्रायरी एल्गोरिथम व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, वी आर फाइंडिंग आउट द कैंडिडेट सेट, एंड फ्रॉम द कैंडिडेट सेट वी आर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंट सेट्स। यहाँ पे एक अपडेशन कर दिया, देयर इज वन मोर पास, मतलब एक सिंगल पास और ऐड करते हैं जहाँ पे यू आर फाइंडिंग आउट ऑल द बॉर्डर सेट, मतलब जनरेट बॉर्डर सेट। तो ये जो एल्गोरिथम है वो आपकी क्या जनरेट करेगी, आपके बॉर्डर सेट भी जनरेट करेगी। तो ये वाली एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है। इसमें पहले कैंडिडेट सेट हम जनरेट करेंगे, सारे डेटाबेस को स्कैन करेंगे, उनके सपोर्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट काउंट आपका ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होगा वो सारे कहाँ हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट सेट में आ जाएंगे। और जहां पर सपोर्ट काउंट आपके यूजर डिफाइंड सपोर्ट काउंट से कम होगा वो सारे कहाँ चले जाएंगे, आपके बॉर्डर सेट में, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंट सेट भी आ जाएंगे और बॉर्डर सेट भी आ जाएंगे। लास्ट में जब पूरा डेटाबेस स्कैन कर लेंगे तो विल टेक द यूनियन ऑफ दीज टू, union of union of LK means the union of all the frequent sets, and union of the BKs means union of all the border set. Okay, so इस तरीके से आप क्या करेंगे, बॉर्डर सेट भी जनरेट कर देंगे by using the modification in a priori algorithm. एक और एल्गोरिथम है, दैट एल्गोरिथम इज योर बॉर्डर एल्गोरिथम। और इसमें जो है वो जो इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट है, पर इसमें हम क्या करें, इनिशियल फॉर द होल डेटाबेस हम स्कैन करेंगे और उसमें ही हम इनिशियली बॉर्डर सेट फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट रिक्वायर्स the algorithm works as follows: initially L old and B old are known along with their respective support count. ये एल ओल्ड और बी ओल्ड कहाँ से फाइंड आउट होंगे, ये जो अभी हमने मॉडिफाइड ए प्रायरी एल्गोरिथम पढ़ी है इससे फाइंड आउट होंगे। एल ओल्ड में क्या आएंगे, सारे फ्रीक्वेंट सेट आएंगे प्रीवियस डेटा सेट के, और बी ओल्ड में क्या आएंगे, सारे बॉर्डर सेट आएंगे प्रीवियस डेटा सेट के, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें नया ट्रांजैक्शन ऐड होगा। तो जैसे ही नया ट्रांजैक्शन ऐड होगा हम दो कैटेगरीज में फाइंड आउट करेंगे, एफ फाइंड आउट करेंगे और बी फाइंड आउट करेंगे। जो एफ है वो हमारे सारे फ्रीक्वेंट सेट की वैल्यूज होंगी जो हमारे कंप्लीट डेटाबेस में होंगे, और जो बी होगा वो सारे बॉर्डर सेट की वैल्यू होगी जो कंप्लीट डेटाबेस में होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आपकी जो इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम थी, जब वो इंक्रीमेंट हो जाता है मतलब नया ट्रांजैक्शन ऐड हो जाता है, तब हम उसके प्रमोटेड बॉर्डर सेट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हम सारे ही फ्रीक्वेंट सेट कंप्लीट डेटाबेस में और सारे ही बॉर्डर सेट भी फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज एन एल्गोरिथम वेयर द बॉर्डर सेट इज काउंटेड। तो बॉर्डर सेट एल्गोरिथम जो है वो आपकी जो है एक्सटेंशन है इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम का। तो इनिशियली आप इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम यूज करके आप सारे इसका सपोर्ट फाइंड आउट कर लेंगे। आप पहले फाइंड आउट करेंगे सारे फ्रीक्वेंट सेट और सारे बॉर्डर सेट, उसके बाद हम कंप्लीट डेटाबेस एक बार फिर से स्कैन करेंगे और जो अब सारे फ्रीक्वेंट सेट हो गए हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे और सारे बॉर्डर सेट फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद जो कंप्लीट हमने फाइंड आउट करा है उसमें से हम वो सारे एलिमिनेट कर देंगे जो अब इनफ्रीक्वेंट हो गए हैं, और फाइनली एट द लास्ट वी टेक द यूनियन ऑफ ऑल द वैल्यूज जो प्रीवियसली फ्रीक्वेंट थे और जो अब फ्रीक्वेंट हो गए हैं उन सबका हम यूनियन ले लेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, इससे शायद ये थ्योरी पार्ट आपको क्लियर होगा। तो इनिशियली दिस इज द वेरी सेम प्रीवियस डेटाबेस जहाँ पे 15 रोज थी और हमारे 9 कॉलम्स थे, ठीक है। तो 9 कॉलम्स हमारे सेम रहेंगे, इसमें हमारे पास कितनी ऐड हो गई न्यू रोज, 5 रोज जो है वो ऐड हो गई। तो अब जो हमारा डेटाबेस बना है वो कितनी रोज का बन गया, 20 रोज का बन गया। दिस इज टी न्यू, ये जो है वो हमारी 5 नई रोज जो है वो पुराने वाले में ऐड हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें नॉर्मल एसोसिएशन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या क्या यूज करेंगे, हम ए प्रायरी यूज करेंगे या पार्टीशन एल्गोरिथम यूज करेंगे या पिंसर सर्च यूज करेंगे। पर जब हमारा डेटाबेस अपडेट हो गया है
तो अगर हम वो पुरानी वाली तीनों एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉस्टलियर प्रोसेस बन जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल या बॉर्डर एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो नए ट्रांजैक्शन को ऐड करने में के बाद जो है वर्क करती है। ठीक है, तो अब ये जो थे वो हमारे सारे पुराने ट्रांजैक्शन। अगर आपको याद हो कि उसमें जो था हमारा 1 जो था वो इनफ्रीक्वेंट था, ठीक है, उसका सपोर्ट काउंट क्या था, 2 था। पर अब जो नया ट्रांजैक्शन ऐड हुआ है, देखिए ये जो था ये हमारा जो थे जिसमें हमने फाइंड आउट क्या किया था, 1 और 9 जो थे वो हमारे इनफ्रीक्वेंट थे, बाकी सारे हमारे क्या थे, फ्रीक्वेंट आइटम सेट थे, क्योंकि 2 की वैल्यू 6 थी, 3 की वैल्यू 6 थी, लाइक दैट। तो हमारा जो ए और 9 था उसको हमने प्रून आउट कर दिया था कि दीज आर इनफ्रीक्वेंट। बट जैसे ही नया ट्रांजैक्शन ऐड हुए, ए में जो आपका जो फर्स्ट आइटम सेट है उसमें 2 1 इंक्लूड हो गए, तो अब ए का जो सपोर्ट काउंट है वो कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर हम 9 का देखें तो 9 में यहाँ पे 2 टाइम्स 1 आया, पर जो 9 का नया ट्रांजैक्शन था उसमें सारी एंट्री 0 ही है, तो 9 जो था वो प्रीवियसली भी इनफ्रीक्वेंट था और अब भी क्या है, इनफ्रीक्वेंट है। बट जो फर्स्ट आइटम था वो प्रीवियसली क्या था, इनफ्रीक्वेंट, बट इसमें क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट थे उन सबको हम क्या करेंगे, उनका सपोर्ट काउंट जो अब बढ़ गया है वो सब में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रीवियसली क्या थे, कुछ बॉर्डर सेट भी थे, जैसे 1 क्या था, इनफ्रीक्वेंट था, तो ऑब्वियसली ये बॉर्डर सेट हो गया। ऐसे ही 3 और 6 जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 6 था वो 5 6 7, ऐसे ही और भी होंगे, 9 होगा, ये भी होंगे। पर इन सबको अगर हम काउंट करेंगे इनके नए सपोर्ट, तो सिर्फ 1 3 6 और 5 6 7 जो है वो 3 प्रमोटेड बॉर्डर सेट बन जाएंगे, क्योंकि इनके सपोर्ट काउंट क्या है, वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम है ये प्रायरी की तरह, कि आप फिर 2 आइटम सेट निकालेंगे, उनके सपोर्ट काउंट निकालेंगे, फिर 3 आइटम सेट निकालेंगे, उनके सपोर्ट काउंट निकालेंगे, और जब सबके सपोर्ट काउंट्स निकाल लेंगे तो जितने भी फ्रीक्वेंट बचेंगे उन सबका क्या कर लेंगे, हम यूनियन ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है एसोसिएशन रूल में है, दैट इज जनरलाइज एसोसिएशन रूल। जनरलाइज एसोसिएशन रूल, अभी तक हमने जितने भी एसोसिएशन रूल पढ़े वो यूजुअली क्या थे, इट डिपेंड्स अपॉन योर न्यूमेरिकल डेटाबेस। ठीक है, न्यूमेरिक जो डेटाबेस थे उन पे डिपेंडेंट है। पर अगर हमारे ज्यादातर जो भी एसोसिएशन रूल्स होते हैं वो कैटेगोरिकल डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं। कैटेगरी का मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यूजर आर इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग रूल्स दैट स्पैन्स डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, और वो कहते हैं रूल्स ऑफ द लोअर लेवल में not have minimum support. Taxonomy can be used to prune uninteresting or redundant rules. Multiple taxonomies can be presented. ये मैं पहले आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा कि जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एसोसिएशन दे रखा है जहाँ पे परचेज ऑफ द कॉफी एंड टी बायर और कॉफी बायर्स के बीच में हमने एसोसिएशन फाइंड आउट किया है कि हमारे पास क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो टी परचेस करते हैं, कुछ लोग कॉफी परचेस करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि कई लोग जो होंगे वो टी के साथ कॉफी भी परचेस करेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ कॉफी परचेस करेंगे, कई लोग सिर्फ टी परचेस करेंगे। ठीक है, तो अगर टी वाली रो देखेंगे तो टी में हमें टोटल वो रोज लोग मिलेंगे जो हमारे सिर्फ टी परचेस करते हैं, और टी बार जो है उसमें वो लोग होंगे जो टी को परचेस नहीं करते। ऐसे कॉलम में देखेंगे तो सी में वो सारे रोज हैं, लोग हैं जो हमारी क्या करते हैं, कॉफी परचेस करते हैं, और सी बार में वो लोग हैं जो हमारी कॉफी परचेस नहीं करते। तो अगर आप देखेंगे तो 100% डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, 70 + 20 + 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 100% पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 20 पीपल जो है, अगर आप कॉलम अगर इसको एनालाइज करें तो ऐसा होगा, जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ पे 20 एंट्री है, तो दीज आर द पर्सन हु परचेज टी एज वेल एज द कॉफी। ओके, एंड फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री देखिए, 5 आर द पर्संस हु परचेज टी बट नॉट परचेजिंग द कॉफी। 70 वाले को कैसे कहेंगे, 70 वाले
70% are the people who purchasing the coffee but not the tea, and 5% are the people who are neither purchasing the coffee neither purchasing the tea. Okay, so अभी तक हम एसोसिएशन रूल्स क्या थे, सिर्फ एक सीधे ऑर्डर में, मतलब एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर में डिफाइन कर रहे थे। पर जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल्स का मीन्स ये है कि यू टेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स। ठीक है, कि अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है द पर्सन हु आर परचेजिंग द टी एंड कॉफी, so similarly हम ये सब भी फाइंड आउट करें, the person who are purchasing tea are not purchasing coffee, or who is purchasing coffee is not purchasing tea, मतलब रिवर्स भी फाइंड आउट करें और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करें। ठीक है, रिवर्स और इनवर्स मींस कि नॉट परचेजिंग वाला भी और इसका अपोजिट भी, जैसे C tends to T then T tends to C, okay, then C tends to C, T tends to C bar, then C bar tends to T bar, like this. So, जब हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने सारे टाइप के एसोसिएशन रूल को फाइंड आउट किया, तो दिस इज जनरलाइज्ड वन। अब इनमें कौन से वैलिड रहेंगे, वो रूल्स वैलिड रहेंगे जो हमारे क्या है, जिनकी सपोर्ट वैल्यू हाई होगी। ठीक है, जिनकी सपोर्ट वैल्यू वेरी हाई है वो हमारे क्या होंगे, वैलिड रूल्स होंगे, अदरवाइज जो होंगे वो हमारे नॉट वैलिड रूल्स होंगे। जैसे जो हमारा पहला रूल है, कितने लोग अगर हम देखेंगे टोटल टी परचेस करते हैं, तो अगर रो देख लें तो 20 + 5 25 पीपल्स आर दो हु आर परचेसिंग टी। ठीक है, तो इफ आई बिल्ड अ एसोसिएशन रूल टी टेंड्स टू सी, मतलब अगर कोई टी परचेस कर रहा है तो उसके साथ कॉफी भी परचेस कर रहा है, तो दिस रूल इज वैलिड और नॉट, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखेंगे, the support count in that column divided by the total number of the transactions. So 20 divided by 25. 25 are those people who are purchasing tea. ठीक है, and 20 are those number which purchasing both the tea and coffee. ठीक है, तो 20 divided by 25 करेंगे तो it comes out to be 0.8, approximately 80%. ठीक है, तो support value is very high, so it's a valid rule. ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी सबका भी कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, कई बार हमारे क्या होते हैं निगेटिव, जो आपका अगर